Hello everyone, and welcome to Students Wala by Prachi. This is Prachi, and I'll be a mentor throughout the year. So, let's make a very nice journey. Let's just try acing every exam. Not just try, but let's ace every examination by using our concepts. I believe that we should not only read, but we should absorb. We should not only learn, but we should experience. And we should not only change, but we should transform. That is my motto, which I'm going to give you, and I assure that you will have a clarity of each and every concept which is taught to you. Here, we are going to start a new batch of 2023, that is the Students Wala batch. Okay, here we'll be teaching you various concepts of mathematics, science, and SST, that's a social studies, and we'll also be preparing you both mentally and physically, because if you are mentally strong, you are physically strong, for competitive exams like NTSC and NSTSC, and also for your CBSE board examinations class 9th. Okay, that's very important though. That prepares you for standard 10 examinations, so you feel much confident on your skills and abilities. So not only this, but I want you all to have a clarity of each and every concept. Like, you have to comment your doubts. Okay, after every lesson you are to state that no, I have some doubts related to whatever she told. So you're just going to comment down your doubts, and I sure that I'm going to reply to each and every doubt. I'm going to clarify your doubts then and there. When you're sending any doubt, you're sending any queries, then I assure that I'm going to answer every doubts. Okay, so let's ace every examination, let's do everything we can do, and let's study nicely so that we can understand the concepts and crack any question. Okay, so today we are going to deal with history, chapter 1, the French Revolution. Okay, and just one more point to state, that we'll not only have here some questions on every weekends. We'll bring you some test papers and question papers. Okay, along with that, I'll give you the NCERT line by line explanation along with some reference books which I prefer, right? Because in between some lines are just dropped out, so I believe that I should just clarify that in my own words. And we'll have a conversation in both English and Hindi. That's a Hinglish kind of thing I can use in between Hindi, because when you are understanding it in your own mother tongue, that becomes very, very clear to you, right? Each and every point, because that has a great history. That's anyway a different thing. Let's just stick to the topic. Let's be coherent. So we have the topic, the French Revolution. Okay, so at first, we all have talked about so many revolutions, right? We studied the history of India, starting from the Paleolithic age, the Mesolithic age, the Neolithic age, all that back in standard 6th, 7th, and 8th. We clarified all those things. Here we are talking on an international platform, right? The French Revolution. So first, my question is, what is a revolution? You see a word here, revolution. What does this mean? Okay, we all hear that's a revolution, protests are going on, revolutions are going on. What does a revolution do? And here we are stating the French Revolution. Okay, French Revolution means it's related to, France, which is in, okay, capital of France is Paris, correct. So what is revolution though? Let me tell you. Basically, revolution is an action. Now, action taken by whom? Taken by a large group of people. Now, why do they do some actions? Right? Why do those large groups of people do some actions? To try to change the government of a country. And revolution is done usually by a violent action. Okay? So a proper definition could go like an action taken by a large group of people to try to change the government of a country, especially by violent action. That's what revolution is. Okay, fine. Now, let's go discuss this part. So, जब हम लोग मूवी देखने जाते हैं, ओके, जब हम लोग कभी भी मूवी देखने जाते हैं तो क्या देखते हैं? सबसे पहले में ट्रेलर दिखाते हैं. हम लोग ट्रेलर देख के कोई मूवी पसंद करते हैं, है ना, कि मेरे को ये मूवी देखना है, तो उसके लिए पहले मैं ट्रेलर देखूंगी कि मुझे कौन सी मूवीज तो बहुत सही लगते हैं सिनेमा में, बट हम सिलेक्ट करते हैं ना कि कौन सा मूवी मुझे देखना है. तो उसके लिए क्या करना पड़ता है?
पहले ट्रेलर देखते हैं कि कौन सा मूवी अच्छा लग रहा है, मूवी अच्छा लगेगा तब उसको देखने जाएंगे. तो is he, similar to that? In this first page we see what is that? That is nothing but a trailer of the chapter. जैसे हम लोग जो कोई ट्रेलर देखते हैं तो उस ट्रेलर को मैंने देख लिया, उसके बाद जब मैं मूवी देखने जाती हूँ तो बीच में वो पार्ट, वो सीन जो है कहीं मुझे दिख जाता है ना. वही काम इसमें भी होगा. इस पर्टिकुलर पेज में, दैट इज योर पेज, द इंट्रो पेज, ठीक है, उसमें सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर का एक ट्रेलर देखेंगे, एक बेसिकली एक ड्राफ्ट देखेंगे कि क्या होगा इस चैप्टर में. एंड देन यही सेम लाइंस आप अपने बुक के कहीं बीच में, मिडल ऑफ द पेज में ये सेम लाइंस पाएंगे. ठीक है, दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पार्ट, आई लव्ड अबाउट इट. ठीक है, तो ये करने वाले हैं. तो लेट्स मूव डाउन, देखते हैं क्या अंदर. ओके, सो वी स्टार्ट आवर जर्नी फ्रॉम हियर. या ओके, सो on the morning of 14th July 1789, तो कब की बात हो रही है? 14th July 1789 की बात हो रही है. अब देखो ये 1789 कौन सा सेंचुरी हुआ? फर्स्ट लेट्स नो दैट व्हाट इज दिस सेंचुरी कॉल्ड. इसको हम लोग बोलते हैं लेट 18th सेंचुरी. ठीक है, अब अगर मैं पूछूं कि अर्ली सेंचुरी क्या होता है, मिड सेंचुरी क्या होता है और लेट सेंचुरी क्या होता है, मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग दिस डिफरेंस, राइट? आई एम वेरी वेरी श्योर मोस्ट ऑफ यू माइट नॉट बी नोइंग दिस डिफरेंस. तो सबसे पहले ये डिफरेंस क्लियर करना बहुत जरूरी है. ठीक है, तो हमारे पास 3 सेंचुरीज होती हैं. एक होती है अर्ली सेंचुरी, एक होती है मिड सेंचुरी, एक होती है लेट सेंचुरी. तो अर्ली सेंचुरी की अगर बात करें, सेंचुरी कितने साल की होती है? बेसिकली 100 ईयर्स की होती है सेंचुरी. अर्ली सेंचुरी की अगर बात करें तो वो शुरू होती है 0, मैं बताती हूँ क्या है, पहले लिख देती हूँ. ठीक है, 01 से 35, ये होती है 35 से 65 एंड ये 65 to 99. अब इसको समझते हैं. जैसे अगर मैंने बात की 18th सेंचुरी, इस लेट को काट दो, मैंने बात की सिर्फ 18th सेंचुरी की. ठीक है, तो अगर मैं 18th सेंचुरी की बात कर रही हूँ तो मेरे को बात करना है अर्ली 18th सेंचुरी की. तो अर्ली 18th सेंचुरी में जो ईयर होगा, एक साल कम कर दो. ठीक है, 18 में से 1 माइनस कर दो. जब भी सेंचुरी बोलते हैं, कोई भी सेंचुरी, हम लोग किस सेंचुरी में रह रहे हैं? अभी हम लोग 2023 में है. ठीक है, एक साल से बढ़ा दो, हम लोग 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, 20+1. ठीक है, वैसे ही 18th सेंचुरी है तो मेरे को बात करना है 18th सेंचुरी में कौन सा ईयर आएगा. 18 में से 1 माइनस कर देंगे. ठीक है, 17. तो 1701 से लेकर 1735 तक अर्ली सेंचुरी होगा. 1735 से 1765 तक मिड सेंचुरी होगा और 1765 से 1799 तक एनीवेज लेट सेंचुरी होगा. ठीक है, ये एक बेसिक डिफरेंस है जो पता होना चाहिए. हम यहाँ किस बात सेंचुरी की बात कर रहे हैं? तो हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ लेट 18th सेंचुरी की, दैट इज 1789. एंड ये 89 किसके बीच आएगा? 65 और 99 के बीच. तो ये एक डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट था जो क्लियर करना था, बिकॉज मोस्ट ऑफ यू आर स्टडिंग हिस्ट्री सिंस 3 years 4 years एंड ऑल दैट, बट यू डू नॉट नो दिस बेसिक डिफरेंस. तो उसके लिए क्लियर करना बहुत जरूरी था एंड आई क्लियर्ड इट. ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं. फाइन, अब देखते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है. लेट्स सी दैट. तो यहाँ लिखा हुआ है कि 14 जुलाई 1789 दिस वाज द मॉर्निंग डे. और जो पेरिस थी, द सिटी ऑफ पेरिस, कहाँ पर है? ये फ्रांस में है, कैपिटल. ठीक है, तो जो सिटी थी फ्रांस की, दैट वाज इन द स्टेट ऑफ अलार्म. स्टेट ऑफ अलार्म में थी. मतलब क्या हुआ, एकदम से हो गई थी, एकदम डेयरिंग हो गई थी कि क्या होने वाला है. एकदम they were prepared, kind of pre-prepared. The king had commanded troops to move into the city. अब एक चीज ये देखो, किंग मतलब वहां पर कौन सा रूल चल रहा था, कौन सा फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था? मोनार्की था. मोनार्की में भी, लेट मी क्लियर इट मोर, एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी वहां पे. ठीक है, ये सब टर्म्स याद रखना. वहां पे क्या चल रही थी? एब्सोल्यूट मोनार्की चल रही थी उस समय. फाइन, तो किंग ने क्या किया था? अपने ट्रूप्स को कमांड कर दिया कि तुम सिटी में जाओ. ठीक है, इसीलिए वो सिटी, मतलब जो लोग थे वो अलार्म के स्टेट में थे. ठीक है, रूमर्स फैल गए थे. रूमर्स मतलब क्या होती है? अफवाहें. ठीक है, तो रूमर्स फैल गए थे कि जल्द ही जो आर्मी है वो लोगों पर वार करेगी. दे विल फायर अपॉन द सिटीजन्स. ठीक है, अब ये तो रूमर्स फैले थे, सच में ऐसा नहीं होने वाला था. सच में तो कुछ और ही होने वाला था जो मैं आगे बताऊंगी. आई विल नॉट ब्रेक द सस्पेंस राइट नाउ.
तुम लोगों को खुद पता होना चाहिए, या तो तुमने चैप्टर पढ़ा होगा, नहीं तो मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ था, रूमर्स फैले थे, एक मिसकंसेप्शन की वजह से ही ये पूरा ये पूरा इंट्रोडक्शन बेस्ड है, एक मिसकंसेप्शन की वजह से ये सब कुछ हुआ है, ठीक है। क्योंकि यहाँ क्या फैले, बस रूमर्स फैल गए कि लोग द आर्मी इज गोइंग टू कम एंड फायर अपॉन द सिटीजन्स, बट सिटीजन्स को कुछ अच्छा पता नहीं था कि भाई सिटीजन्स क्यों आर्मी आए हैं अंदर सिटी में, क्यों आए, इसका एक रीजन था, उसको बाद में डिस्कस करेंगे। तो कुछ 7,000 मैन थे, ये नंबर याद रखना, कुछ 7,000 मैन एंड वुमेन थी। कहां पर गैदर हुए थे, तो टाउन हॉल के फ्रंट में गैदर हो गए थे, एंड इन्होंने अपनी एक मिलिशिया फॉर्म करने का सोचा। नाउ व्हाट इज अ पीपल्स मिलिशिया, मतलब एक खुद की आर्मी, क्योंकि अब उन्हें क्या करना था, किससे compete करना था, रॉयल आर्मी से compete करना था। अब रॉयल आर्मी से compete करना, तो रॉयल आर्मी के पास क्या रहता है, बहुत सारे वेपन्स होते हैं ना, बट इन कॉमन पीपल के पास क्या था, कुछ नहीं था, राइट। तो उन्हें खुद को एक प्रिपेयर करना पड़ा था। कुछ 7,000 मेन एंड वुमेन वर देयर एंड दे डिसाइडेड टू फॉर्म अ पीपल्स मिलिशिया। अब उन्हें चाहिए था वेपन्स, चाहिए था ना, वेपन्स चाहिए था, तभी था वो रॉयल आर्मी से compete कर पाते हैं। तो रूमर्स के बेसिस पर था ना, बट क्या रॉयल आर्मी सच में फायर अपॉन करने वाली थी, नहीं करने वाली थी, ठीक है। बस रूमर्स फैल गए थे और लोगों को खुद को प्रिपेयर करना था कि मुझे भी वेपन्स चाहिए होंगे, एम्यूनिशन चाहिए होगा, ताकि मैं उस रॉयल आर्मी से compete कर सकूं, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, दे ब्रोक इनटू अ नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। अब वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में क्यों गए, क्योंकि उस समय क्या होता था कि whoever the king was there, वो अपने होर्डेड एम्यूनिशन, ये वर्ड याद रखना, यहाँ पे मिलेगा तुमको, होर्डेड एम्यूनिशन। होर्डेड मतलब होता है स्टोर्ड एंड एम्यूनिशन मतलब होता है वेपन्स, ठीक है। जो स्टोर्ड वेपन्स थे वो कहाँ पर स्टोर करके रखते थे, वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, मोस्ट ऑफन वो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में, प्रिजन्स में, यहाँ पर स्टोर करके रखते थे। इन सर्च ऑफ आर्म्स, ये आर्म वो हाथ वाला आर्म नहीं है, ठीक है, ये आर्म मतलब होता है वेपन्स, ठीक है। वेपन्स की तलाश में वो बहुत सारे गवर्नमेंट बिल्डिंग में गए, घुसे, वहां पर तबाही मचाई एंड सो व्हाट नॉट दे डिड, ठीक है, ताकि वो क्या ढूंढ सके, वेपन्स ढूंढ सके। क्यों वेपन्स ढूंढना था, बिकॉज उन्हें रॉयल आर्मी से compete करना था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Finally, a group of several hundred people marched towards the eastern part of the city and stormed the fortress prison, the Bastille. अब देखो, ईस्टर्न पार्ट में, ठीक है, क्या कुछ 100 लोग थे, कुछ 100 लोग थे, कहां पे मूव किए, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, ठीक है। किस पार्ट ऑफ द सिटी में, ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में। क्यों गए थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी में, उन्होंने फोर्ट्रेस प्रिजन का मतलब होता है एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इक्विप्ड प्रिजन, ठीक है। फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इक्विप्ड प्रिजन, एंड उस प्रिजन का नाम क्या था, द बास्टील। अब इसका नाम द क्यों इसके आगे लग गया था वो जानते हैं, ठीक है। उन्होंने वहां होप किया था कि उन्हें स्टोर्ड वेपन्स, होर्डेड एम्यूनिशन वहां मिलेगा, ठीक है। उसके बाद उन्होंने एक आर्म्ड फाइट की, एकदम हथियार के साथ एकदम फाइट की। कमांडर जो बास्टील का था, ही वॉज किल्ड, एंड वहां पर 7 प्रिजनर्स थे उस प्रिजन में, उनको रिलीज कर दिया गया, ठीक है। अब देखो, बास्टील को सब लोग हेट करते थे। अभी जेल को क्यों हेट करेंगे, जेल में तो रखते हैं ना, प्रिजनर्स को रखते हैं, तो क्यों जेल को हेट करेंगे। अच्छा, ये देखो, एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट है कि अगर तुम किसी इंसान को, इफ यू हेट एनी पर्सन, ठीक है, तो मतलब उससे रिलेटेड जितनी भी चीजें होंगी तुम उसको भी हेट करोगे। यही थी कॉमन पीपल के साथ। कॉमन आर्मी को, कॉमन पीपल को किंग पसंद नहीं थे, तो किंग की तो हर एक चीज ही पसंद नहीं होगी ना। तो किंग का जो डिस्पोटिक पावर था, उनका जो द एक्सट्रीम सुप्रीम पावर था, वो बास्टील रिप्रेजेंट करता था। अब क्योंकि किंग की डिस्पोटिक पावर थी, तो लोगों को ऑब्वियस सी बात है कि बास्टील से भी हेट होगा, हेट्रेड होगा, राइट। सो इसीलिए दे वर हैविंग अ फीलिंग ऑफ हेट्रेड टुवर्ड्स द बास्टील। उन्होंने क्या कर दिया, दे स्टॉर्म्ड दैट बास्टील। अब मैंने एक चीज बताई थी तुमको कि फोर्ट्रेस प्रिजन मतलब क्या होता है, एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इक्विप्ड प्रिजन। अब सोचो कि लोगों को इतनी हेट्रेड थी उस प्रिजन से कि उस स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इक्विप्ड प्रिजन को भी उन्होंने तबाह कर दिया, एंड उसके स्टोन फ्रैगमेंट, स्टोन से बना था वो, उसको मार्केट में सेल कर दिया। For those who wish to keep a souvenir of the destruction. अब सोवेनियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन मतलब कि कोई उसे याद में रखना चाहता था कि मैंने इसे डिस्ट्रक्ट किया था, ठीक है, इसे डिमोलिश किया था, एंड किसी को अपने एज अ मेमोरी इसको रखना था, तो वो मार्केट में जाकर इसको खरीद सकता था, ठीक है। तो सोवेनियर ऑफ द डिस्ट्रक्शन के लिए इसे मार्केट में भेज दिया गया। अब देखो, The days that followed saw more rioting both in Paris and the countryside.
कंट्री साइड का मतलब होता है विलेज। मोस्ट ऑफ द पीपल जो बच्चे होते हैं वो समझते नहीं है कंट्री साइड का मतलब क्या होता है, बस कंट्री साइड को रट लेते हैं। तो कंट्री साइड का मतलब ये तुम जान लो होता है विलेज, ठीक है। तो पेरिस तो सिटी थी ना, तो इसका मतलब है कि सिटी और विलेजेस में और भी राइटिंग, बहुत ही खराब दिन और देखने को मिले, ठीक है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट द हाई प्राइस ऑफ ब्रेड। ब्रेड उस समय स्टेपल फूड था फ्रांस का, ठीक है, स्टेपल फूड था। तो लोग क्या कर रहे थे, ब्रेड का प्राइस उन्होंने बढ़ा दिया था। अब एक बात जानो कि वहां पे ऑलमोस्ट 90% जो पॉपुलेशन थी वो पीजेंट्स की थी, ठीक है। एंड उन्होंने क्या किया, प्राइस को और हाई कर दिया। तो इसके वजह से बहुत सारी प्रोटेस्ट होना शुरू हो गए। सो मोर प्रोटेस्ट वर हैपनिंग दैट टाइम। Much later, when historians look back upon this time, they saw it as the beginning of a chain of events that ultimately led to the execution of the king in France, though most people at the time did not anticipate this outcome. How and why did this happen? Anticipate का मतलब जान लो, देखो बहुत सारे न्यू टर्म्स हैं, तुमको नहीं पता होगा बट तुम फिर भी याद कर लेते हो, ठीक है। Anticipate का मतलब होता है to expect something to happen, ठीक है। This will build your vocabulary too. To expect something to happen, ठीक है। तो बहुत क्या हुआ कि हिस्टोरियंस ने इस समय के बारे में और पीछे देखा, तो उन्होंने देखा बहुत सारे चेन ऑफ इवेंट्स और सारी इवेंट्स होने वाले थे इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, जिससे इसके बाद तो प्राइस तो हाई हुआ ही, उसके बाद और भी बहुत सारे इवेंट हुए जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या हुआ, जो फ्रांस का किंग था उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया, ठीक है। ये क्यों हुआ इसको पढ़ा जाएगा, कैसे और क्यों हुआ। तुमको ट्रेलर दिखने जाते हो मूवी में तो बता देता है क्या पूरा स्टोरी क्या हुआ था, नो दे डोंट टेल यू, राइट। वो बोलते हैं मैंने तुमको इतना बता दिया, अब तुम आओ खुद देखो मूवी क्या हुआ तुम जानो, राइट। दे डू दिस, ठीक है। वही चीज इसमें भी है, तुम्हें बता दिया कि स्टार्टिंग में ऐसा ऐसा होने वाला है ताकि यू डेवलप एन इंटरेस्ट टुवर्ड्स द चैप्टर। तुमने इतना पता चल गया तुम्हें कि क्या होने वाला है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना क्या है मुझे, तो फिर तुम खुद इंटरेस्टेड हो जाओगे दैट व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। इसके बाद क्या होगा, कैसे पेरिस का किंग एग्जीक्यूट हो जाएगा, फ्रांस का किंग एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसको पता करने के लिए तुमको चैप्टर पढ़ना होगा। दैट्स द मेन मोटो ऑफ दिस इंट्रोडक्शन। अब एक चीज देखो, यहाँ नीचे में एक डायग्राम है, ठीक है। इस डायग्राम को अच्छे से पढ़ो। इस डायग्राम में क्या है, स्टॉर्मिंग द बास्टील। तो बास्टील क्या था, एक फोर्ट्रेस प्रिजन था, स्ट्रॉन्ग मिलिट्री इक्विप्ड प्रिजन, उसे डिमोलिश जैसे किया गया था। एक आर्म्ड फाइट हुई थी ना, देख सकते हो ना गन्स को, तो उसी तरह से जैसे ही डिमोलिश हुई ये बास्टील, जैसे ही डिमोलिश हुआ, सोवेनियर इसका बेचने में द स्टोन फ्रैगमेंट्स वर सोल्ड इन द मार्केट, वैसे ही आर्टिस्ट ने क्या किया, इस इवेंट को याद करते हुए, कोमेमोरेटिंग दिस इवेंट, उन्होंने बहुत सारे ड्राइंग्स बनाए, बहुत सारे प्रिंट्स बनाए इससे रिलेटेड, ठीक है। ये काम किसने किया, आर्टिस्ट ने किया। तो ये था मेरा पहला पेज जो मैंने, आई थिंक आई हैव क्लैरिफाइड एवरीथिंग, बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट जस्ट कमेंट बिलो। I'll definitely, I'm not going to try, but I'm definitely going to answer each and every of your questions, ठीक है। हर क्वेश्चन का आंसर मैं दे दूंगी then and there। आप जैसे ही करोगे क्या हो गया ये, हाँ जैसे ही आप भेजोगे तो मैं उसी समय आंसर दे दूंगी, ठीक है। फर्स्ट पेज से कोई डाउट है तो बताना। अब जो नेक्स्ट सेशन हमारा होगा उसमें मैं तुमको यूनिट 1 में फ्रेंच सोसाइटी ड्यूरिंग द लेट 18th सेंचुरी करवा दूंगी टिल यहाँ तक, ठीक है, या इस फ्लो चार्ट तक करवाऊंगी, सबसिस्टेंस क्राइसिस तक कंप्लीट करवा दूंगे। तो जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा उसमें हम लोग ग्रोइंग मिडिल क्लास, इन्वेसेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, इन्वेस्ट स्टेजेस एंड एंड टू प्रिविलेजेस, उसको करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो पहला पेज तो हो गया। अब इसमें क्या होमवर्क पे, लेट्स लुक एट द होमवर्क। क्या करना है, कुछ की पॉइंट्स लिखने हैं, ओके। होमवर्क विल बी राइट सम की पॉइंट्स, जो भी की पॉइंट मैंने पढ़ाया है उसको लिख लेना, कुछ डेट्स इसमें है बहुत सारे उसको लिख लेना, एंड वोकैब एनरिचमेंट। आई ऑलवेज बिलीव दैट यू शुड एवरी डे आपको अपनी वोकैब को इनरिच करना होगा। CBSE also conducts English examinations. I hope you all know that there is something known as English examinations. So to vocab and enrich your vocabulary, there are a lot of words here, right? I guess militia was a new word for you. Hoarded ammunition was a new word for you. Fortress, prison was a new word. Despotic, anticipate, souvenir, rioting, many words were there, more words are there, I guess. तो you just write it down, write its meaning, ठीक है, कैसे related है इससे, तो वो सब करो, ठीक है। and just remember it कि इससे मैं 2-3 questions next class जैसे हम लोग शुरू करेंगे, तो उस क्लास को शुरू करने से पहले उन 2-3 questions को solve करेंगे, ठीक है। अच्छा, and one more homework, तुमको ये find करना है कि प्राइस का ब्रेड हाई क्यों हुआ, ठीक है। चैप्टर खुद पढ़ के, तो यू हैव टू फाइंड कि व्हाई डिड द
price of the bread become high. एक और चीज तुमको फाइंड करना है कि अगर रूमर्स पहले थे कि किंग आ गया है, कि मतलब किंग ने ट्रूप्स को भेजा, किंग ट्रूप्स तो सच में आए थे ना, तो ट्रूप्स क्यों आए थे? ये तो रूमर्स थे ना कि फायर अपॉन करने वाले थे, बट सच में क्या करने वाले थे ये ट्रूप्स? तुमको ये भी फाइंड करना है. तो ये दोनों काम मैंने दिया एंड की पॉइंट्स एंड वोकैबुलरी रिचमेंट. दिस इज योर होमवर्क, जस्ट डू इट. ठीक है, एंड देन विल स्टार्ट विद द सेकंड यूनिट. ठीक है, so for today class 9 students, this was your first page. I hope you liked it and comment down your learning experience too. I want to know how many of you are watching the video daily and how many of you are learning, enjoying learning. Okay, so I hope to see you all soon and happy learning journey to all of you. Thank you.